السلام علیکم۔ بھارت گروپ آف اسکول اور جونیئر کالجز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کی مہذبی میس آج آپ کا اردو کا لیکچر لینے جا رہی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 5 لفٹنی کی مشکلیں۔ اس کے مصنف ہے کرنل محمد۔ طنز و مزاح پیج درس میں پڑھیں گے، اور یہ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اردو نظم و نثر کی اصناف میں مختلف اصناف میں طنز و مزاح کی عمدہ نمونے ہمیں مل جائیں گے۔ طنز نگار معاشرے کی اصلاح کی غرض سے زندگی کی جو واقعات ہیں، تضادات ہیں، سماجی برائیاں ہیں، انہیں نشانہ بناتا ہے۔ طنز اور مزاح میں بڑا ہی ہلکا سا فرق پایا جاتا ہے۔ مزاح میں عام طور پر تنقید یا دلاداری کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، لیکن ہنسی سماج کو نامناسب حرکات سے روکنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اکثر مزاح نگار اپنی ذات پر ہنسنا ان لوگوں کے لیے طنز ثابت ہوتا ہے جو انہیں حالات کا شکار ہے۔ ادب میں طنز و مزاح دلچسپی اور تفریح اتباع تک محدود نہیں ہے۔ زبان کا تخلیقی استعمال ظریفانہ ادب کی ایک اہم خوبی ہے۔ مسرت و بصیرت، ناہمواریوں کا احساس اور نامطابقت کا شعور فقاہیہ ادب کے مطالعے کا حاصل ہے۔ رتن ناصر شار، ملا رموزی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، مرزا فرت اللہ بیگ، کنہیا لال کپور، فکرت تونسوی، عظیم بیگ چغتائی، شوکت تھانوی، مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا، کرنل محمد خان اور مجتبیٰ حسین اردو کے چند مشہور طنز و مزاح نگار ہیں۔ سرکاری ملازمت کے ہر شعبے میں تربیت اور تنظیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فوج میں ملازمت کی تربیت اور تنظیم تو دیگر تمام شعبوں کی تربیت سے مشکل اور ناگزیر سمجھی جاتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ تربیت خاص انگریز حکومت کے فوجی اصولوں کی پابند تھی۔ واضح ہونا چاہیے کہ مزاح کو سننے یا پڑھنے میں اس کا فوری رد عمل ہنسی قہقہے کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ظرافت فقاہیات کا ایسا تصور ہے جو کسی متن کا حصہ تو پڑھنے والے کو پہلے اس پر کسی قدر غور کرنا پڑ جائے، پھر اس کے معنی کھلتے ہیں تو ہنسی قہقہا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ظرافت بھرے جملوں کا اثر دیر پا ہوتا ہے، یعنی اس سے وہی لطف و سرور حاصل ہوتا ہے جو انشائیہ کے مطالعے سے مخصوص ہے۔ اسی لیے طنز و مزاح سے ادب میں ظرافت کی مثالیں کمیاب ہیں۔ البتہ کرنل محمد خان کی تحریروں میں اس کا رنگ جگہ جگہ موجود ہے۔ مثلاً ذیل کا سبق جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایسے متعدد جملے، خیالات اور اقوال ملیں گے جن سے مصنف ظرافت نگار کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ مصنف کرنل محمد خان نے جہاں تربیت حاصل کی، اس سبق کے متن میں اسے ہلکے پھلکے مزاح لیکن گہری فکری ظرافت کے اصول میں بیان کیا ہے۔ یہ خیال کہ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا، مگر ایک طالب علم جنگ میں کودنے پر تل گیا۔ اس جملے میں انہوں نے اپنی تردید آپ ہی نظر کی ہے۔ اس کے مثال یہ ہے کہ امن و امان بھی ہے اور جنگ میں کودنے کا تضاد بھی ہے۔ یہ محض تضاد نہیں ہے، ایسی صورتحال ہے کہ دوسری بات تو ناقابل قبول ہے مگر اسے قبول کرنا مجبوری ہے۔ یہ خیال امن و امان پر طنز ہے، کیونکہ شاید اس وقت ملک میں اتنا امن و امان نہ ہو۔ کرنل محمد خان سے جان پہچان کریں گے۔ کرنل محمد خان 5 اگست 1910 کو ضلع چکوال کے قصبہ بلکسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز چکوال سے کیا۔ انہوں نے 1934 میں پنجاب یونیورسٹی سے اقتصادیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ کرنل محمد خان فوج کے شعبہ تعلیم کے ڈائریکٹر رہے، نیز انہوں نے برطانوی راج میں ہندوستانی فوج میں بھی کام کیا اور دوسری جنگ عظیم میں مشرق وسطیٰ اور برما کے محاذ پر بھی خدمات انجام دی۔ کرنل محمد خان کو طالب علمی کے زمانے ہی سے تحریر اور تصنیف کا شوق تھا۔ ان کی پہلی تصنیف بجنگ آمد ان کے زمانے جنگ میں گزاری ہوئی داستان حیات ہے۔ زیر نظم مضمون لفٹنی کی مشکلیں اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ ان کی دیگر تصانیف باسلامت روی اور بزم آرایاں شائع ہو چکی ہیں۔ 23 اکتوبر 1999 کو کرنل محمد خان کا انتقال ہوا۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ جنوری 1940 میں ہر جنگ کے پولینڈ اور ہٹلر کے دوسرے ہمسائے جرمن بمباروں اور ٹینکوں کے درمیان ایسی پرسکون زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، تاہم باقی دنیا بفضل خدا خیریت سے تھی، اور ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں تو انگریز کی برکت سے
इस शिद्दत से अमल बरपा था कि शेर बकरी में जुमला हिंदुस्तानियों के एक घाट पानी पी रहे थे। तो वाक़या 1940 का है। उस वक्त पोलैंड और हिटलर की दूसरे हमसायों के साथ जर्मन बमबारों और टैंकों के दरमियान जो है जंग छिड़ी हुई थी। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने अपने खूबसूरत लफ्ज़ों में ऐसे बयान किया और कहा है कि यहाँ वो लोग ऐसी पुरसकून ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे थे। बाकी दुनिया पर फजल खुदा खैरियत से थी। उनके अपने मुल्क हिंदुस्तान में तो अंग्रेज़ की बरकत से ने हमारे मुल्क में उस वक्त अंग्रेज़ की वजह से शायद इतना अमन अमान था कुछ हिंदुस्तानियों के बखौफ कि जैसे शेर और बकरी एक घाट से पानी पी सकते थे। चुनांचे सुलह हस्ती के इस खुशगवार माहौल में गुमान तक न था कि ऐन इस वक्त मुल्क के गोशे में एक अहम जंगी वाक़े की इब्तिदा हो रही है, यानी लाहौर में एक नौजवान कॉलेज छोड़कर जंग में कूद पड़ने पर तुल गया है। अब यहाँ पर जो है मुसन्निफ़ ने तंज़ किया है कि और ज़राफ़त का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लफ्ज़ों को कितनी खूबसूरती से चुना है, कितना खूबसूरती से बयान किया है कि जिस तरह से खूबसूरत अमन व अमान का माहौल है, उस अमन व अमान के माहौल में मुल्क के किसी कोने में एक जंगी वाक़े की शुरुआत हो रही थी। और वो जंगी वाक़या क्या था कि मुसन्निफ़ जंग के मैदान में कूदने पर तुल गए थे। हमें फ़कत लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था, चुनांचे हमने फ़ौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी। अभी उन्हें लेफ्टिनेंट बनना था, इसलिए उन्होंने कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी थी। उन दिनों अभी वो मुसीबत नाज़िल हुई थी जिसे आजकल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, यानी उस वक्त सिलेक्शन बोर्ड की जो है परेशानी नहीं थी। इंटरव्यू तो खैर उन दिनों भी होते थे, बल्कि एक छोड़ तीन थी, लेकिन नहायत शरीफाना किस्म के। जो एक बुजुर्ग से जनरल होते थे, कुछ निम बुजुर्ग से ब्रिगेडियर होते थे और कर्नल बैठे होते थे। सामने कुर्सी पर उम्मीदवार को बिठाया दिया जाता था और फिर उससे नहायत बेज़रर से सवाल पूछते थे। बेज़रर यानी ऐसे सवाल जिससे कोई नुकसान ना हो। आपका नाम क्या है, तालीम कहाँ तक है, फ़ौज में कोई रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह। चुनांचे हमारे 2 इंटरव्यू झेलम और पिंडी में, यानी मतलब 2 इंटरव्यू झेलम और चुनांचे 2 इंटरव्यू जो है मुसन्निफ़ के झेलम और पिंडी में हुए और वह कामयाब रहे। आखिरी इंटरव्यू के लिए हुक्म मिला के फला तारीख को शिमला आ जाओ। ये सुनकर इनकी इंतहा न रही। चुनांचे उन्होंने तो मान ही लिया कि मैं तो अब लेफ्टिनेंट बन ही गया, क्योंकि अब शिमला जाना है और जब इंटरव्यू हो चुकेगा तो शिमले से घर पहुँचेंगे और लेफ्टिनेंट के हुक्म का बेचैनी से इंतज़ार करने लगेंगे। उधर कुछ अजलत पसंद बुजुर्गों ने, ऐसे लोगों ने जो समझ रहे थे कि बस अब ये तो लेफ्टिनेंट बन ही गए, इनके एजाज़ में दावतें देना शुरू कर दी, जिन्हें हम वाजबी बरखुरदारी मगर अफसराना वक़ार के साथ कबूल करते रहे। आखिर एक दिन डाकिया खुला तार लेकर आया और वहीं से बोला कि लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनेंट मुबारक हो। यानी उसने पहले ही ये ऐलान कर दिया कि आप लेफ्टिनेंट बन चुके हो, लेकिन तार खुला तो उसमें इतना लिखा था कि तुम्हें OTS मऊ में ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया है। 8 अगस्त 1940 को हाजिर हो जाए। तो बकौल मुसन्निफ़ उनका ख्याल था कि 3 इंटरव्यू देने पर वो लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। उन्हें ट्रेनिंग की प्रोसेस के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब चूँकि ट्रेनिंग का प्रोसेस भी उनके जो है इसमें शामिल था, इस जो है काम में, तो अब उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया उन्हें महू में। तो अब वो तैयार थे। 8 अगस्त 1940 को उन्हें हाजिर होना था। तो ट्रेन के लिए उन लोगों को जो है फर्स्ट क्लास का डब्बा मिला था और ये उनकी आली जाही की अलामत, यानी कितने बड़े अफसर बनने जा रहे हैं, इस बात की अलामत थी। टिकट देखने के बाद डब्बे में दाखिल हुए तो उन्हें सर कहकर मुखातिब किया गया। खुदा जाने उन्हें महसूस हो जाता था या आम आदमी नहीं, लेफ्टिनेंट, यानी वो लोग जब फर्स्ट क्लास डब्बे में सफ़र करने वाले को सर कह रहे हैं तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मुसन्निफ़ को कि वो लोग खुद ही कयास कर लेते हैं कि मैं कोई आम आदमी नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट हूँ। बहरहाल हम उनसे वही सलूक करते जो एक अफसर को दरमियाना दर्जे के सरकारी मुलाजिम से करना चाहिए। यहाँ पर भी मुसन्निफ़ ने एक खूबसूरत सा तंज़ किया है उन लोगों पर जो आला कुर्सियों पर बैठने के बाद जो दीगर लोगों को जो है कम आंकते हैं या उन लोगों को जो है कम, अपने से छोटे लोगों को कम समझते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने वही सलूक किया उन लोगों के साथ जो एक दरमियाना अफसर के साथ सरकारी मुलाजिम को करना चाहिए। और इत्तेफाक राय से इस बात पर हुआ कि मामूली फ़र्क है,
चुनांचे रतलाम और मऊ के दरमियान हमारा मिजाज अर्श मोहल्ला से कुछ ही रहता है। यानी उनका मिजाज जो है आसमान को छू रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब मैं तो बस लेफ्टिनेंट बनने ही वाला हूँ। आखिर मऊ का स्टेशन आ गया। तवक्का थी कि उनके इस्तेमाल के लिए फ़ौज का दस्ता आएगा, बैंड होगा, मोटरें होंगी और उनके ड्राइवर उनके लिए दरवाज़ा खोलेंगे और बाअदब बामुलाहिज़ा अपने बंगलों तक पहुँचा देंगे। लेकिन देखा तो यहाँ का बंदोबस्त बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आया। इस्तेकबाल के लिए आदमी तो थे, लेकिन इनमें ऐसी वाफिर आदमियत नहीं थी। वाफिर आदमियत यानी इतने ज़्यादा तादाद में लोग न थे। गाड़ी रुकी तो हमारे डब्बे में एक गोरा दाखिल हुआ, जिसके बाजू पर 3 सफ़ेद धज्जियाँ यानी बैंड बैजेस जिसे हम बोलते हैं लगे हुए थे। अगर इस डब्बे में कोई कैडेट है तो अभी मत बाहर निकले। उसने कहा कि कैडेट है अगर अंदर, तो जो अंडर ट्रेनिंग जो फ़ौजी होते हैं, जो जिनकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होती, उन्हें कैडेट कहा जाता है। तो उस गोरे ने कहा कि अगर इस डिब्बे में कोई कैडेट है तो वो बाहर ना निकले। हम बैठ तो गए, एलोवेशन में बैठ गए, लेकिन गोरे की ज़बान जो है उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो बेहद खुरदरी लगी। इलाहाबादी कैडेट का लफ्ज़ सुनकर उन्हें कुछ तशवीश से हुई, इन्हें शक हुआ कि हम में से कोई धोखा तो नहीं हो रहा। यानी मैं तो लेफ्टिनेंट हूँ और ये मुझे कैडेट कह रहा है, ये कैडेट क्या चीज़ होती है। चुनांचे जब हमें ज़रा पुख्ता सा शुबा होने लगा कि इन अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट से वस्ल की कुछ खुफिया शर्तें भी ठहरा रखी है। लेफ्टिनेंट से वस्ल की यानी लेफ्टिनेंट हासिल करने से पहले शायद उन्हें और दीगर जो है शर्तें भी पूरी करनी पड़ सकती हैं, जिनसे हमें पहले आगाह नहीं किया गया। जब स्टेशन दूसरे मुसाफिरों से खाली हो गया तो गोरा फिर आया और अचानक चिल्लाया, सब कैडेट मेरे सामने कतार में हो जाए। हम यानी दूसरे जो और दीगर उनके साथ में थे कैडेट, सब हैरान हो गए, एक दूसरे को देखा और बेदिली से कतार में बना ली। गोरा फिर चिका, दाएँ से 1 2 3 बोलो। तो इन लोगों ने हुक्म की तामील की, लेकिन महसूस हो रहा था कि इनकी शान के खिलाफ है, क्योंकि अब तो ये लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं और लेफ्टिनेंट बनने के पहले उन्हें किसी का हुक्म की तामील करना, किसी के पीछे इताअत करना, ये सब जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आखिर हम रंगरूट तो थे नहीं जो कतारें बनाते या गिनती शुरू कर देते। बहरहाल हमें 3 टोलियों में तकसीम किया गया और फिर वही गोरा बोला, बाहर 3 ट्रक खड़े हैं, हर टोली एक ट्रक में सवार हो जाए। तो उन्हें यकीन हो गया, यानी मुसन्निफ़ को अब यकीन हो गया कि इनसे कोई गलतफहमी हुई है, कुछ भी हो, हमें इन ट्रकों में ले जाना शदीद जो है गलती हो सकती है, बेअदबी हो सकती है, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट को या तो मोटर कार में जाना चाहिए, इज्जत से जाना चाहिए, ना कि ट्रकों में बैठ कर जाना चाहिए। मगर सोचा कि इनसे उलझना हमें ज़ैब नहीं देता। ये बात भी सच है कि इतने बड़े अफसर को एक छोटे से अफसर से उलझने की क्या ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो हम इनसे उलझते नहीं, आगे बढ़ते हैं। सोचा कि कुलियों को आवाज़ दे दी जाए तो वो उनका सामान उठाकर ट्रकों में रख देंगे। ये और जब इन्होंने कुलियों को आवाज़ दी तो उसको गोरा गरज कर दिया। क्या कहा? कुली, तुम फौजी स्कूल में आए हो। यानी वहाँ पर जो है खुद मुख्तारी का सबक दिया जाता है फ़ौज में, और यहाँ पर किसी कुली उली को बुलाया नहीं जाएगा। अस्पताल में नहीं, अपना सामान खुद उठाओ, ट्रकों में ला दो और ऊपर जाकर बैठो या खड़े रहो। समझ तो गए और खुशफहमी पर कुछ ओस भी पड़ गई कि अब जो भी है हमें इन लोगों की बात सुननी पड़ेगी। हत्तल मकदूर जलाल में आकर बेअदब को गहरे और मुतफ़िक़ा गज़ब से देखा। मुतफ़िक़ा ने जितने वहाँ मौजूद थे सभी यही खुशफहमी में थे कि अब तो जाते ही लेफ्टिनेंट मिल जाएगी, ऊँचा रुतबा मिल जाएगा। ट्रेनिंग को तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब अब ट्रेनिंग का जो एक हिस्सा है वो सामने आ रहा है तो इन लोगों को वो बात पसंद नहीं आ रही है, खासकर गोरे की जबान इन्हें पसंद नहीं आ रही है। तो उन लोगों ने एकदम एक दूसरे के साथ तय कर लिया कि जब कभी भी ज़िंदगी में पहला फ़ैसला यही करेंगे, अगर लेफ्टिनेंट हो गए तो इस गोरे गुस्ताख का कोर्ट मार्शल कर देंगे। और इसी दिलेराना फ़ैसले पर हर तरफ से मरहबा के साथ, क्या बात है, कितना अच्छा फ़ैसला है। इस वक्त हम कोर्ट मार्शल को माशाअल्लाह का करीबी रिश्तेदार समझते थे। इन्हें कोर्ट मार्शल और मार्शल लॉ में ज़्यादा फ़र्क पता नहीं था। मंसूल मकसूद की झलक तवक्कात से बहुत गैर मुशाबा थी। यानी जैसे उन लोगों ने सोचा था कि बंगलों में जाकर रहेंगे, यहाँ पर वो हाल नहीं था। जहाँ पर उन्हें ठहराया गया था वो बंगले की निस्बत जेल से ज़्यादा मिलती जुलती थी। एक बड़ा ही संगीन बल्कि संग दिल सी बैरक थी और तंग और तारीख और तवील, जिसके अंदर दीवारों के साथ
लोहे की चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, आहारी चारपाइयाँ यानी लोहे की चारपाइयाँ पड़ी थी, और चारपाइयों पर इनके नाम की तख्तियाँ जो है लगी हुई थी। उन्हें देखकर इन तख्तियों को देखकर जो मुसन्निफ़ को झटका सा लगा। गोरा इस बात को समझ गया कि आखिर ये लोग डर क्यों रहे हैं, तो उसने कहा कि ये गले में लटकाने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारी जो है सीट्स, तुम्हारी नशिस्तें चुनने के लिए है कि आप तुम लोग अपनी अपनी चारपाई ढूंढो और जाकर वहाँ पर अपना सामान रख देना। और फिर इसके साथ में ये भी ऐलान हुआ, ये भी हुक्म हुआ उन लोगों को कि सामान उठाने और चलने फिरने में उन्हें चुस्ती दिखानी है, शोर नहीं करना है। शाम हुई तो खाने के लिए लोग मैस में गए, और ये पहली जगह थी, यानी मैस वो पहली जगह थी जहाँ उन्हें लगा कि हम सही में लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हैं। एक अफसराना ठाठ से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे मुअद्दिब और बावर्दी बहरों ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मशरूबात पेश किए, और उस खुशगवार माहौल में उन्होंने स्टेशन और बैरिक के नाखुशगवार वाक़यात को भुला दिया, यानी वो भूल गए कि अब जो सुबह में उनके साथ में क्या हुआ था, और एक सुरूर के आलम में बाहम गिटपिट करने लगे। गिटपिट करना है ना, एक दूसरे से बातें करने लगे। इतने में दो खुश लिबास अंग्रेज़ अंदर दाखिल हुए। दो खुश लिबास यानी जिनकी वज़ाकता से वो बहुत अच्छे अफसर मालूम होते थे। ये भी फ़ौजी वर्दियाँ पहने होते, लेकिन उनके बाजू पर जो है बैजेस नहीं थी, बल्कि इनके कंधों पर जो है पीतल के स्टार्स लगे थे, 3-3 चमकते सितारे थे। ये ऑफिसर्स थे। उनकी जो वज़ाकता, बातचीत और तौर तरीके में जो है शाइस्तगी थी और वक़ार था। उन्हें देखा तो फ़ख्र सा महसूस हुआ कि उसूलन हम और ये अफसर एक ही लड़ी की मोती है, यानी उन लोगों से अपने आप को मुशाबा करने लगे मुसन्निफ़। आज नहीं तो कल हमारे कंधों पर भी वही जगमग करते सितारे उभरने वाले थे। थोड़ी देर के बाद साथ के कमरे में खाने के लिए गए। अंग्रेज़ी खाने और देसी खाने में के अंदाज में तकरीबन वही फ़र्क है जो अंग्रेज़ी और उर्दू बोलने में। बेशक अंग्रेज़ी खाना जो होता है वो अलग तरीके से होता है, और हिंदुस्तानी खाना भी अलग होता है, और इन दोनों में वही फ़र्क होता है जो अंग्रेज़ी और उर्दू बोलने में पाया जाता है। जिस तरह एक नौ आमाज की ज़बान से अंग्रेज़ी अल्फाज या मुहावरे फिसल जाते हैं, उसी तरह हमारा अंग्रेज़ी मटर गोश्त भी हमारे अडारी छुरी कांटों की जद में ना आता था। और जो खाना इन्हें दिया गया था वो मटर गोश्त था, जिसे खाना इनके लिए ज़रा मुश्किल हो रहा था क्योंकि छुरी और कांटे से खा रहे थे। उधर बातों से खाना खिलाफे शान था, हाथों से खाना खिलाफे शान था, लेकिन बरज़ाद और रग़बत फाका करना भी मुमकिन न था, क्योंकि सामने खाना रखा हुआ और भूखे रह जाए तो ये तो जचेगा ही नहीं। तो जिस तरह अगर बोलते बोलते अंग्रेज़ी जवाब दे जाए तो उर्दू पर हाथ या ज़बान साफ़ कर ली जाती है, उसी तरह जहाँ अंग्रेज़ी छुरी कांटे से काम न चलता तो मुसन्निफ़ आँख बचाकर उंगलियों से ही कुछ गोश्त खा लेते, गोया अंग्रेज़ी खाना उर्दू में खा लेते थे। कुछ हज़रात ऐसे भी थे जो लेफ्टिनेंट के एहतराम में औजारों की वसातत के बगैर कोई चीज़ अलग से उतारते ही ना थे। इन्हें बहुत से जो दूसरे कैडेट्स थे जो उस खाने को अपने हाथों से खाना गवारा नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम हाथों से नहीं औजारों से ही खाएंगे, और हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि उनमें से कई एक को देखा कि सिर्फ छुरी कांटा लिया, प्लेट में मटरों का ताक़ुब करते रह गए, मटरों का पीछा कर रहे थे, और मटर कभी इधर से निकल जाता है कभी उधर से निकल जाता है, इधर से निकले। और किस्सा मुख्तसर ये कि उनकी मटरों को कोई गंध ना पहुंचता है, नहीं मटर तो उनके हाथ में नहीं आया, लेकिन बेरे जो है वो प्लेट उठाकर चल दिए, और लेफ्टिनेंट साहब अपना सा मुँह और छुरी कांटा लेकर रह जाते। कभी कभी ये भी मालूम ना होता था कि बेरा जो कुछ सामने रख गया है इसके साथ करना क्या है, यानी तो क्योंकि मुसन्निफ़ जो है एक हिंदुस्तानी कैडेट है, और अंग्रेज़ी खाना जब उन्हें सर्व किया जाता है, उन्हें पेश किया जाता है, तो वो समझ नहीं पाते कि अब इसके साथ करना क्या है, किस तरीके से इसे खाना है। तो क्या करते थे, ये अपनी आँख से उन अंग्रेज़ों को देखते थे जो उनके साथ बैठे होते थे कि ये क्या कर रहे हैं, और जिस तरह मुसलमान जो है इमाम के पीछे रुकू और सुजूद करते हैं, उसी तरह मुसन्निफ़ जो है अंग्रेज़ों के देखा देखी उनको देख कर खाना खाते थे। तो आपके लिए आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे का सबक पढ़ाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आज आपको लेसन समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा सबक है, और मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में बहुत सारे काम दिए हैं, तो प्लीज़ आप उन कामों को कंप्लीट कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।